Thank you for your insights and now moving forward, हमें बहुत ही हर्ष है कि आज हमारे बीच डॉक्टर महेश शर्मा जैसे व्यक्तित्व यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसा कि श्री ठुकराल जी ने भी अपने वक्तव्य में कहा कि नोएडा के गौतम बुद्ध नगर के विकास के लिए उनका अपार योगदान रहा है और इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए तत्पर और प्रयासरत रहते हैं डॉक्टर महेश शर्मा। It's our privilege to have him here and I request him to address the gathering. Compliments goes to all present here with a warm good evening to all of you. To witness this great show, I was really asking Lalit Bhai, is Mr. Thakur has wrongly said it is the biggest show of the globe? He reiterated it and confirmed it that it's the biggest global show. I think it's a pride moment for all of us to witness this, and I acknowledge this and I say big thank to the industry, the textile group and the organizing group, of which Mr. Lalit Thukral needs no introduction. Other than friend, philosopher and guide, he is a visionary. He is the person, give him a task and the things follow him. I have witnessed him for last about 35 years. I am in this township for last about 41 years or so. What was Noida, what was Gautam Buddha Nagar 40 years back? Now we see the change. And it's a pride moment for all of us that majority of us are a part of this. Compliment goes to Lalit Bhai and your complete team of taking this apparel textile industry and shaping the dreams of our great Prime Minister and the privilege of working under him in 4 ministries which has got some relation with this textile, this tourism, the culture, the civil aviation, and of course the environment. He was of the opinion that don't do the things, but if you do it in a big way. And that's what we can see today. Thank you, Anilji. Thank you, Mr. Thakur, for bringing this show to this my Karam Bhumi, Noida and Gautam Buddha Nagar, which is the show window of this state, and not only state but the nation also. And now with coming of this international airport in this township, I think this influx of foreign investments, the industry and all other things with a conducive and safe and secure environment in Noida, I think the future of Noida and Gautam Buddha Nagar is going to lead by this. I have a brother who is my master, who is my inspirer as an entrepreneur. I have a huge capital to start with. I was invited to Japan for a talk on business model of Chinese model versus the Japanese model. There were industrialists, there were doctors, so I astonished there while saying कि इन्होंने मुझे क्यों बुलाया? यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर, इंडस्ट्रिस्ट भी हैं, बहुत कुछ है. तो जो पुअर गर्ल थी, उन्होंने स्क्रॉल किया कि कुछ बोले सर हमने आपका बायोडाटा देखा और उस बायोडाटा को देख के आपको बुलाया है. मैंने कहा क्या लिखा था इस बायोडाटा में? तो उस बायोडाटा में लिखा था व्हाट वाज योर सीड कैपिटल व्हेन यू स्टार्टेड योर वेंचर. तो सीड कैपिटल मैंने शुरुआत में लिखना शुरू किया कि इट वाज 600 रुपीज. उसमें आगे लिखा था राइट इन यूएस डॉलर्स. उस वक्त डॉलर 50 रुपए का था, तो वो बेचारे 600 रुपए $50 में कन्वर्ट हो गए. बोलो वी वांटेड टू सी कि इस $50 से भी कुछ हो सकता है क्या? एक हिंदुस्तानी कर सकता है और हम सब कर सकते हैं. नीरज भाई मेरे उन दोस्तों और भाइयों में हैं जिन्होंने, अनिल मोन्ट्रा जी बैठे हैं, भाई राजीव बंसल जी बैठे हैं और बहुत सारे लोग बैठे हैं. थैंक यू रोशन जी. दोस्तों ये टाउन फ्यूचर का टाउन है और देश का भविष्य इस टाउन से जुड़ा है. इस टाउन का भविष्य देश के साथ जुड़कर आज हम ग्लोबल इम्पैक्ट बनाने जा रहे हैं.
जिस शो की 40,000 करोड़ की फिगर मुझे भी चकराया, ग्लोब शो का लार्जेस्ट शो, और अनिल जी ने और सबने कहा कि जिस जगहों पर ये हो रहा है, भारत मंडपम और यशोभूमि, ये भी अगले विषय की टॉप ऑफ द टाउन शोज होंगे। मेरा सौभाग्य कि उसके इनॉग्रेशन शो में जब प्राइम मिनिस्टर ने इसका किया तो वो देखने का मौका मिला, और अब यशोभूमि मैंने भी नहीं देखा अभी, बट सुना है और भी बहुत खूबसूरत है। आपके यहाँ एक्सपो मार्ट है, और अप्रैल, मुझे सौभाग्य है कि 40 साल पहले का नोएडा अगर कभी कोई सोच ले तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि आज हम कहाँ होंगे और क्या कर पाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके कुछ भी नहीं था, और इस 40 साल में, और ख़ास तौर पर पिछले 10 सालों में जो बदलाव आया है इस नोएडा और गौतम बुद्ध नगर में, वो हम सबके लिए इंस्पायरर है, हम सबके लिए एक प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म आज आपको, हमें मोदी सरकार और योगी सरकार ने हमें दे दिया है। क्रिकेट हमें खेलनी है, पिच तैयार है, अब इस क्रिकेट पर खेल कर सिक्सर्स और फोर्स और हमें लगाने हैं। आज से अच्छा कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर नहीं हो सकता। मैं जब पहली बार प्राइम मिनिस्टर के मिलने गया तो छोटी सी स्लिप उनके पीएस ने आके मेरी जेब में डाल दी। वो स्लिप मैंने वहां नहीं देखी, लेकिन बाहर निकलकर मैंने देखा तो उस पर कुछ लिखा हुआ था। तो लिखा था, प्राइम मिनिस्टर इज प्लीज टू गिव यू मिनिस्ट्रीज इन टूरिज्म, कल्चर एंड सिविल एविएशन इन इंडिपेंडेंट चार्ज। तो मैं सोच के गया था कि मैंने कहा मैं डॉक्टर आदमी हूँ, शायद ज़्यादा से ज़्यादा राज्य मंत्री स्वास्थ्य का मिलेगा, तो टूरिज्म कल्चर और इसमें क्या। मैं वापस गया, मैंने कहा सर ये क्या सोच के आपने दिया, मैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा, पहली बार के एमपी को ये भी मिलने की उम्मीद नहीं थी। बोले बहुत कुछ सोच के दिया है, और आप विश्वास कीजिए उसके बाद इनोवेटिव आइडियाज़, एक मास्टर, मेंटर, कूल लिसनर, ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिलना सौभाग्य है। और जो उन्होंने आगे सिखाया कि 6.8% of our total GDP comes from tourism. He said my target of taking this GDP is to 10%, and of which this textile industry alone can play a big role. And I, as a first citizen of this, as a member parliament of this constituency, I propose myself to be at your doorstep at any time of need and call. I'll stand with you. This is my promise to you. And when I have friends like Lalit Bhai, Neeraj ji, Rajiv Bhai, and most of you, future is ours. Future is of India. And I close up my statement by saying that let's feel proud to be that. We are the givers. The human being is the most selfish creation of the God on this earth. ये इंसान सिर्फ देने वाले को सलाम करता है, लेने वाले बैगर को नहीं करता। आप बाहर जाकर इस होटल के एक भिखारी को 500 रुपये दे दीजिए, आप उसके पाँव नहीं छूते, नमस्ते नहीं करते, आप सिंपैथाइज करते हैं उससे। देने वाले को सलाम करते हैं आप, चाहे वो आपका मेंटर हो, चाहे गॉड हो, माँ बाप हो, आपका टीचर हो, आपका गुरु हो, आपका एम्प्लॉयर हो, कि हम उस इकोनॉमी के हिस्सा तो बन ही रहे हैं। हम लाखों करोड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, उनकी ब्रेड एंड बटर दे रहे हैं, उनकी एजुकेशन दे रहे हैं। लेट्स फील प्राउड ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ दैट गिवर्स क्लब ऑफ गॉड। थैंक यू वेरी मच। कॉम्प्लीमेंट्स टू ऑल ऑफ यू एंड गुड विशेस फॉर दिस ग्रेट शो। Future belongs to India. On this positive note, we thank you, Dr. Mahesh Sharma, for inspiring us with your words of wisdom. And now it's time to engage with our distinguished speakers here. We invite you to participate in an open house for questions and answers. Please feel free to share your queries, and let's make this session interactive. We'll take a couple of questions, and before that, we will take this opportunity to express our gratitude once again to Dr. Mahesh Sharma for his august presence and for his words as he leaves for today. We'll carry on the session with question and answers.
Yes, so now we are ready for questions. Any questions? Ji. Sir, good evening. Hi, my name is Uday Sehgal. Sir, the question is very, very simple. Lalit uncle, our mentor, has actually given up the show that comes up right now at this time, India International Garment Fair, just because Bharatex is coming. So why are the other councils organizing the show when such a big show is coming, in spite of this being a consortium of all the councils? Why is the other councils organizing a show when Bharatex is coming? Who is the question addressed to? I am addressing this to the Ministry of Textiles. Yes, we requested, this proposal came from EPCs that, because this was the idea of the government that we should have a very big Mega Textile show. And then this proposal came from EPCs that we are going to organize, and if the government supports, then we are going to come with the government and we will have a Mega Textile. Now, individually, if they are organizing some, we cannot stop them. They are free. Government is supporting. Government is not driving them. So they are free. They want to organize, they want. No, sir, but then we as an industry. No, let me answer this. See, a call was taken, I think maybe early August. See, there was some, back and forth whether this event will be held or not held. But then it was decided that once it was decided that this event will take place, a clear mandate was there that all the existing RBSMs, reverse biocellular meats, will get subsumed into Bharatex, right? And that is what precisely has happened. If there is one or two so, which RBSM has continued, I think that must be an aberration. But most of the councils, they have not had any RBSM since August 2023, right? And the MAI grant, which was available to them, is getting, reappropriated for biofacilitation of Bharatex, right? Thank you. उन्हें उनका जो पैसा था ना जो उनको दे रहे थे वो सब पैसा बायरों को बुलाने में उनके ऊपर खर्चा करने में Bharatex में यूज हो रहा है. इट्स जॉइंट. हाँ नहीं वो नहीं हो रहा ना अभी उनके कैंसिल है सब शो. एक शो कर रहा है ना उसका कोई फर्क नहीं पड़ता. हमारे टेक्सटाइल की बात है. ईपी से चीज और टेक्सटाइल उनका वो बर्तन लोहा और वो सब चीजें ज्यादा है उसमें. फर्नीचर है हैंडीक्राफ्ट है. बट टेक्सटाइल दिस शो इज टेक्सटाइल. यार्न फाइबर गारमेंट्स फैब्रिक एवरीथिंग इज देयर. सो हमारा जो है वो मेन टेक्सटाइल है. Any other question? आप लोग बायर्स की बात कर रहे थे तो बायर्स के अंदर आपने देखा कि जो दूसरी काउंसिल्स के जो फंड्स है वो भी बायर्स को लाने में लग रहे हैं. तो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है और जो मिनिस्ट्री की कैलकुलेशन आ रही है 4,000 बायर विल कम. एम आई राइट सर? Good evening. I am Sanjay Verma, Director Savvy Global Fashions Private Limited now. I have one question. One is that the list of buyers who are going to come, will it be made available so that the participant, because I want to participate, that I have decided. My dear friend, Yes. even we don't know who's coming. No, when it actually comes, just a question. Now we provide the list. We will give you list later on, near the fair, not before that. Okay. एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम आपको अभी लिस्ट दे देंगे ना आप सारे एक्सपोर्टर्स बायर्स को मेल करने शुरू कर देते हैं. यहाँ पे तो आपके पास घुसते हो ना गाड़ी में दरवाज़ा खोलने के लिए भी ड्राइवर के अलावा एक पीएन खड़ा होता है. वहाँ पे कोई पीएन नहीं होता, कोई ड्राइवर नहीं होता. उसको गाड़ी खुद चला के जाना है. ऑफिस में भी एक आदमी होता है, उसको सारी मेल पढ़नी है, उसको बैंक जाना है, सारे काम करने हैं. तो हम लोग हमारी इतनी मेल होती है वो देख के परेशान हो जाते हैं. इसलिए हम बायरों का डाटा पहले शेयर नहीं करते हैं. नहीं, कंपनी का आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि हमारे आईजीएफ के अंदर 600-700 बायर आते हैं. आज हमारे 783 बायर रजिस्टर हो गए हैं और 350 से ऊपर बायरों को मैं
उनकी जो टिकट की डिटेल आ गई है, उनकी कंफर्मेशन आ गई है, मैंने उनको होटल बुकिंग करके उनको डिटेल भेज दी है। तो इतनी स्पीडी कभी हुई नहीं, कितनी स्पीड से बाहर आ रहे हों, पर अभी आ रहे हैं। मैंने आपको इंस्टेंस बताया था कि स्वीडन के एक स्टोर को मैं 6 साल से लगा था बुलाने के लिए, नहीं बुला सकता। ये भारत टैक्स का नाम सुनते ही और इस कंसेप्ट को देखते हुए आ गया। ऐसे बहुत सारे, देखिए ये जो एक हमारा आज सबसे बड़ी चीज़ क्या है, पूरी दुनिया देख रही है, चाइना से हटना चाहती है और इंडिया की तरफ आना चाहती है। हमारे पास आते हुए थोड़ा डरते थे, अब उनको भी लग रहा है कि ये भारत टैक्स कर रहे हैं और इनके इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आपके यहाँ अपैरल पार्क बन रहा है, ठीक है ना, सबको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है सारा। ये अपैरल पार्क में कम से कम 10,000 करोड़ की एक्सपोर्ट होगी आपकी। आज नोएडा एक स्ट्रेंथ है आपकी, और नोएडा इज द सिटी ऑफ अपैरल। वो कोई नाम मिलता है तो किसी वजह से मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, उसकी वजह से आप यहाँ खड़े हैं। इस बार बायर बहुत आएंगे, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, और आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। दिस इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये नहीं कि आज बायर नहीं आया तो कल नहीं आएगा। आज हम जाएंगे, बायर आएंगे, शायद ऑर्डर ना दे तुम्हें, लेकिन वो देख के जाएगा ना, अगली बार 10 आदमी को और बोलेगा, 20 आदमी और आएंगे। ये कॉन्टिन्यूस। हांगकॉन्ग में हम जाते थे, पैसा खर्च करके आते हैं और लेके आते थे ना ऑर्डर, कभी मिलता कभी नहीं मिलता, लेकिन हमें जाना होता था वहाँ पे। तो जब आप ग्राहक के पास जब आप पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो जब ग्राहक आपको देखेगा बार बार ना, तो आपको ऑर्डर देगा। उसको पता है ये आदमी भागने वाला नहीं है, पुराना एक्सपोर्टर है, काम कर रहा है, और यहाँ आ रहा है तो उसको उसकी कैपेसिटी होगी, काम कर रहा है। तो आपको अपना एक विश्वास बनाना है, बाहर आपके पास आएगा। दैट्स राइट। कहता है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। IIGF में मैंने पार्टिसिपेट किया था। एट दैट टाइम आई वाज वर्किंग फॉर राजलक्ष्मी एज ए ग्रुप CEO। तो वहाँ जब मैं पार्टिसिपेट किया तो मैंने पाया स्टॉल के फर्स्ट टाइम मैंने सोचा कि देखो IIGF का क्या इम्पैक्ट होता है। तो उसमें मैंने देखा कि मतलब कोई इंफॉर्मेशन था नहीं वहाँ पर कि कितने कौन बाहर आ रहे हैं। जैसे वी डोंट नीड ईमेल एंड फ़ोन नंबर एंड कॉन्टैक्ट नंबर। जब पता हो जाता है ना कि इस तरह का ब्रांड आ रहा है, और तो हम लोग मतलब आप ही लोग के थ्रू, मतलब दवारे को डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, आप ही लोग के थ्रू कुछ हम लोग कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, मतलब कुछ आप लोग से हेल्प ले सकते हैं। दैट्स व्हाट मैं वही आपसे जिक्र कर रहा था। आप ये चाहते हैं कि मैं आपको आज ये बता दूं कि कौन से बाहर आ रहे हैं? आज नहीं, मेरा फेयर से थोड़े दिन पहले। हाँ, तो आप क्या करेंगे, एक को नहीं, मेरे लिए सब भाई हैं, मेरे सबको दूंगा। सारे लोगों के, सब लोगों ने क्या करना है, अपने उसको बोलना है मर्चेंडाइजर को, पकड़ यार सबको मेल डाल, वो सारे मेल डालेंगे, एक ही दिन में 300 मेल आएंगे उसके पास। नहीं ऐसा नहीं। तो वो बायर मेरे को फ़ोन करके, वापस कॉल करके, मेल डाल के बोलता है, वाई यू हैव गिवन माई प्राइवेट आइडेंटिटी टू अदर पीपल। तो मेरे से शेयर की थी उसने। मेरा क्वेश्चन है, सॉरी, मतलब कहता है आई एम जस्ट डिस्कसिंग। मेरा एक क्वेश्चन है कि जो भी बड़े बड़े फेयर्स हम लोग बाहर पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें पार्टिसिपेंट का नाम लिखा होता है या विजिटर का नाम लिखा होता है कि कौन लोग मतलब इधर आ रहे हैं, तो वो तो लिस्ट हमारे ख्याल से मिल ही सकता है। पार्टिसिपेंट का नाम होता है, उनकी बुक होती है, गाइड बुक। बायर कोई नहीं देता, बायर की लिस्ट कोई नहीं देता पूरे वर्ल्ड के अंदर। मैजिक भी नहीं देता, कोई भी नहीं देता। मिस्टर भटनागर कभी कोई बायर की लिस्ट दी है किसी ने बाहर? हम देते हैं। अभी IIGF आपको लिस्ट देता है कि ये बायर आए थे, आप वेबसाइट पे जाइए, आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी, सब बायर्स के नाम, कौन कौन विजिट किया। वो आपकी फैसिलिटी के लिए, वो आया ना, चला गया, अब उसको आप मेल डालो, आराम से देखो उसका। आप देखो पहले कौन सा बायर आपको सूट कर रहा है, उसकी प्रोडक्ट क्या है, उसकी वेबसाइट पे जाओ। अगर वो निट्स कर रहा है और आप निट्स करते हैं तो उसी को पकड़ो, भुवन वाले को मेल मत करो। तो ये मैंने सबसे दरख्वास्त की थी और मैंने सबको गाइड भी किया था कि अब अपने काइंड का बायर ढूंढो और उसको मेल करो, फ़ोन करो। फ़ोन से बजाय मेल करो, अपनी प्रोफाइल भेजो, उसको पसंद होगा वो फ़ोन करेगा, वापस आएगा। थैंक यू। Like I am happy to add, just now I was checking how much space has been sold out. So it is coming to 67%. 2/3 space has already been sold out. So it is this show is getting huge response. So I mean you will get everything there. Means though we are not disclosing who is coming, but you will get everything. हमने IIGF में मैक्सिमम जो बेचते हैं ना, वो 6,000 6,500 से ऊपर नहीं बिकता, 7,000 मैक्सिमम।
एक बार 8 साल पहले हमने बेचा था 8,000 मीटर, आज हमारा गारमेंट के अंदर ही 10,000 से ऊपर जा चुका है। अभी सारे ईसी मेंबर आ रहे हैं उसके अंदर, मतलब वी विल टच गारमेंट का अप्रॉक्सीमेटली 15 से लेकर 20,000 मीटर के बीच में। तो सर ने बोला कि 67% बिक गया, तो मतलब दिस इज फैक्ट। थैंक यू। Do you have separate spaces earmarked within the entire area of 2 lakh square feet for garments वालों के लिए, fabrics वालों के लिए? फैब्रिक के लिए अलग है, गारमेंट्स के लिए अलग है, ठीक है ना, और यान के लिए अलग है, सब अलग अलग है। सब अलग अलग। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि हमें नोएडा क्लस्टर को 100 एकड़ ज़मीन और सेंक्शन हो चुकी है, और जिन लोगों ने नहीं लिया हुआ उनको इस बार डेफिनेटली वी विल टेक केयर। राजीव बंसल जी बैठे हैं हमारे जनरल सेक्रेटरी, तो इस बार इनकी ड्यूटी लगेगी, ये प्रॉपरली पूरी लिस्ट बनाएंगे, तैयार करेंगे, फिर प्लान करेंगे उसको। थैंक यू वेरी मच। My question is with Lalit ji. My name is Parth Bansal. I represent Collegiate. ललित जी, वहाँ पे इतने सारे अलग अलग अपैरल एक्सपोर्ट क्लस्टर से लोग आएंगे. So what is so special about the Noida apparel export cluster that the buyers feel more attracted towards visiting their booths? तो ऐसा क्या, what is going to happen there ताकि यहाँ के क्लस्टर के जो मेंबर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स की इंक्वायरीज आएँ, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी बिग शो. लोग जो तिरपुर से यहाँ लोग आ रहे हैं बहुत, वो निट्स करते हैं. निट्स वाले लेने वाले उन्हीं के पास जाएंगे, और जिनको एम्ब्रॉयडरी चाहिए, जिनको बीड वर्क चाहिए, जिसको लेडीज़ ड्रेसेस चाहिए, जिसको वुमेंस गारमेंट चाहिए, वो ज़्यादा सब नोएडा क्लस्टर में आएंगे. देयर फ्यू पीपल विल फ्रॉम दिल्ली और गुड़गांव, वो भी यही काम करते हैं, ठीक है नहीं. और जिसको जयपुरी स्टाफ चाहिए वो डेफिनेटली जयपुर वाले के पास जाएंगे. तो अपने बॉयर की चॉइस होती है, उसकी रिक्वायरमेंट है, वो वहाँ जाएंगे, ठीक है नहीं. और स्पेशल अट्रैक्शन क्या है, अब अपना स्टॉल अच्छा बनाओ, अपने प्रोडक्ट अच्छे रखें. हम नोएडा वाले इतने बढ़िया बढ़िया माल बनाते हैं. हमारे यहाँ वो नीरज पोगलिया बैठे हैं, ही इज़ द ओनली वन, क्या बढ़िया लेसेस वाला काम करते हैं. ये रोशन बैच जी है, सारे क्रिकेट मैच हो, टूर्नामेंट कोई भी हो, सब गारमेंट इन्हीं के यहाँ बनते हैं. ये जितने भी इंडिया की टीम के ड्रेसेस हैं सब यहीं बनती हैं. तो सबके अपने अपनी स्पेशलिटी है. टेक्निकल टेक्सटाइल है यहाँ, आपको पता है हमारे यहाँ मिलिट्री की ड्रेसेस बनती हैं, पैराशूट्स बनते हैं सारे हमारी इंडस्ट्री में. सो सबकी अपनी अट्रैक्शन है. हाँ जी सर. डिमार्केशन कैसे करेंगे अनऑर्गेनाइज फैक्ट्रीज, ऑर्गेनाइज फैक्ट्रीज? आप आईजेप में आते हैं ना, कितना अच्छा करते हैं हम. ये तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है. अरे क्या हो गया, और बेटर होगा. हमें स्पेस बहुत बड़ा मिला है. पहले हम कंजूसी करते हैं यार, 3 मीटर की जगह 2.5 मीटर कर दो, थोड़ी जगह बच जाएगी. हमें कोई जगह बचाने की जरूरत नहीं है, सरकार ने खुला हाथ दिया है. आप लोगों के अच्छे दिन आने वाले हैं, बता दूं मैं आपको, पक्की बात है ये. सो ऑन दैट पॉजिटिव नोट कि आप सबके अच्छे दिन आने वाले हैं, इस स्केल के सिनर्जिक एंडेवर्स जहां इतनी EPCs और मिनिस्ट्री, सरकार एक साथ एक अम्ब्रेला के नीचे आती है, that show is certainly going to be very spectacular, and please be part of it. And now to conclude today's program, I request Shri Neeraj Prakash ji, member NAEC, to propose vote of मैम thanks. 1 मिनट में, आप सब लोगों को मैंने शायद बताया अभी, ये भारत टैक्स की जो शुरुआत है वो 26 जून को IML में जो हमारा IAJF था उसमें हुई. वहाँ महेश शर्मा जी बैठे थे, मैं बैठा था, और यहाँ पे पीयूष गोयल जी. उन्होंने कहा कि ललित तुम बड़े काम करते हो छोटे तरीके से, अब जो बड़ा काम कर रहा है और बड़े तरीके से करो, सब काउंसिल को मिलाओ, बड़ा शो करो, और तुम्हें करना है. मैंने कहा जी करेंगे. तो मेरा आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि पीयूष गोयल जी तो यहाँ नहीं है, लेकिन हमें पीयूष गोयल जी के लिए क्लैपिंग देनी चाहिए अच्छी, और स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहिए. Thank you. Shri Neeraj Prakash ji to propose vote of thanks now. Good evening everybody over here. To our respected guests who have been on the dais, Ms. Lake ji, Anil ji, Roshan Bhatt ji and Lalit Ugraj ji, obviously the guy who is instrumental in everything of the whatever we are observing here. Thank you very much for all of you coming over here.
Bharat Tax is going to be the very mega affair. And I will request everybody present over here that must take participant and must go with the overwhelming things. I think it will prove to be a very best. Thank you very much for coming. I will not stay much between in that. Have a drinks and food. Thank you very much. You may now proceed for cocktails and dinner. Thank you so much. Good night.